एवं परिवेश, फिर अतुल्य विहार, अंग्रेजी में हिस्ट्री ऑफ पूर्णिया 1722 टू 1793, 19th सेंचुरी मिथिला, फिनुक्स, सर्वे ऑफ अ विलेज प्रमुख कृतियां हैं। इसके अलावे इन्होंने भवभूति, हिस्ट्री ऑफ तमिल तथा भारत का इतिहास पुस्तक का भी मैथिली में अनुवाद किया है। प्रोफेसर मिश्र को 2022 में साहित्य अकादमी ने उनके चमन महल के अंग्रेजी उपन्यास आज़ादी के मैथिली अनुवाद के लिए अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। मैं प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्र जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आके स्थान लें। इनके साथ डॉक्टर अवनिंद्र कुमार झा जी हैं, जो फ्रीलांस हिस्टोरियन हैं और इन्होंने आर्कियोलॉजिकल एस्पेक्ट पे काफ़ी काम किया है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं मंच पे, वो डिस्कसेंट के रूप में उनके साथ रहेंगे। इनके साथ ही प्रोफेसर नरेंद्र नारायण सिंह निराला जी, जो हिस्ट्री के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं आरके कॉलेज से, इन्होंने भी काफ़ी काम किया है, कई किताबें भी लिखी हैं और शास्त्रार्थ नाम की जो शोध पत्रिका है उससे एसोसिएटेड रहे हैं। तो पहले तो तीनों आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे इनविटेशन को स्वीकार करने के लिए और इस दूसरे सत्र में अपनी भूमिका अदा करने के लिए। अब मैं उनके और आलेख वाचक के बीच में अधिक समय नहीं लूँगा। विजय कुमार चौधरी जी, चूँकि उन्हें वापस जाना भी है, तो उनके पेपर पे जो क्वेश्चंस हो जाए वो तुरंत हो जाए तो अच्छी बात है, और लोगों के लिए फिर हम थोड़ा वेट भी कर सकते हैं। Let me begin with expressing my deep gratitude to Pradeep Kant Chaudhary ji, his elder brother and an icon of Mithila, Professor Shrish Kant Chaudhary ji, for giving me this opportunity to be in your midst. Compia said that I have written this, that. Let me tell you that whatever I have written, which you call in Hindi फरमाइशी। किसी ने फरमाइश कर दी और हमने कुछ लिख दिया, nothing beyond that. Coming to Pindaroj in itself is sort of a pilgrimage. The village that produced the stalwart like Chanda Jha, the man who gave a absolutely new path not only to Maithili language but to historical thinking. What they call his potha, I mean his historical collections were tremendous. They couldn't be utilized, they couldn't be used, they were destroyed somehow. But his insight into history is revealing in whatever he wrote, whether in Maithili or otherwise, mostly in Maithili. So, I once again thank the organizers for giving me this opportunity to be here today. And more than that, I thank for the thought that they could think of organizing such a distinguished seminar in a village and with almost all facilities, no troubles, hassle-free. With these opening words, I will say one more thing, that there are, and we have all about 3 hours, 2 to 5.
roughly each paper presenter shall have 15 minutes to present his paper, and he should or she should leave 5 minutes for others to interact. And I hope the paper presenters as well as others will help. For example, when you ask a question becomes longer than the answer. Let the question be just the question, not more than that. Let the speaker speak as much as he can on that. So, with these few opening words, I will now request our very distinguished speaker, Shri Vijay Kumar Chaudhary. Thank you. The former director of KP Jaiswal Institute and presently, I am still confused, director of Bihar Virasat Samiti, through which he has almost taken a vow and he is doing everything possible to make Bihar aware about its Virasat, about its heritage. So I welcome Shri Vijay Kumar Chaudhary and invite him. आपका माइक यहीं लगा दो, माइक यहाँ लगा। जो उत्खनन मैंने कराया था पाण में, समस्तीपुर का एक गांव है, इसके बारे में कुछ साझा कर रहा हूं। और प्रदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस बहुत ही सुंदर इनिशिएटिव के लिए। और मैं बोलूँगा क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने बहुत अच्छे शब्दों में बात को रखा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, नेक्स्ट कर दीजिए, पाण जो है वो समस्तीपुर जिले का एक गांव है, दलसिंह सराय से लगभग 4-5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। और जिस टिले पे खुदाई हम करा रहे थे उसका नाम पांडव स्थान है। मिथिला के इतिहास के लिए इस उत्खनन का एक विशेष महत्व है, क्योंकि मिथिला क्षेत्र की जो प्राचीनता की कुछ दिक्कत, मिथिला क्षेत्र की जो प्राचीनता थी वो प्राचीनता इस खुदाई के पहले क्या थी। जो हमारे टेक्स्ट थे, जैसे वैदिक टेक्स्ट, आप में से सबको पता है कि शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण साहित्य है और इसका कालखंड सबसे अंत माना जाता है वैदिक काल का, लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व या अधिक से अधिक 8वीं सदी ईसा पूर्व। और उसमें वो आख्यान है कि किस तरह से विदेग माधव सरस्वती के तट से अपने पुरोहित रघुमन के साथ चला और जब सदानीरा के उस पार मतलब कि पश्चिम में, पूरब में, सदानीरा के पूरब में पहुंचा तो अग्निदेव प्रकट हुए। और कहा गया कि इसके पहले अग्निदेव प्रकट नहीं हुए थे पूरे सरस्वती से सदानीरा के तट तक पहुंचने के पहले। और जब अग्निदेव प्रकट हुए और अग्नि ने जब जमीन को चखा तो वो जमीन खेती के लायक हो गया और उसके पहले ब्राह्मण वहाँ नहीं बसते थे, वहाँ ब्राह्मण बसने लगे। सदानीरा को इतिहासकार गंडक के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो गई। पुरातात्विक उत्खनन जो हुए उसमें मधुबनी में बलिराजगढ़ एक जगह है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है। वहाँ जो खुदाई हुई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और बाद में पुरातत्व निदेशालय ने भी कराया, वहाँ 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक के ही अवशेष मिले। हाँ, ये जरूर था, लोगों ने कहा कि पानी आ गया, उस वजह से हम और नीचे नहीं जा पाए। तो पुराविदों ने अनुमान लगाया कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बलिराजगढ़ की एंटिक्विटी शुरू हो सकती है। तो दोनों साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत ये कह रहे थे कि मिथिलांचल का इतिहास 6ठी 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले नहीं जा सकता। अब पांडव स्थान की खुदाई से क्या हुआ ये मैं बताना चाहता हूँ। आगे अब तो कुछ दिख नहीं रहा है आप लोगों को, मुझे पता है, तो ये प्रिटेंड करने से क्या। हाँ नहीं, हम दिखाना चाह रहे थे कि यहाँ पर ये पाड़ है
ये देख रहे हैं समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक के किनारे है और ये बलिराजगढ़ है मधुबनी के पास। तो ये जो पांडव स्थान है, अच्छा माफ़ कीजिएगा, जब समय होगा तो मुझे टोक दीजिएगा 15 मिनट के बाद, और फिर 5 मिनट हम चाहते हैं। बिल्कुल जानता हूँ सर। तो पांडव स्थान के बारे में स्थानीय किंवदंती क्या थी? यहाँ लाक्षागृह था क्या कि वहाँ की ज़मीन में आयरन की मात्रा थी, तो जली हुई मिट्टी जैसा लगता था, तो लोगों ने कहानी बना के रखा था, या पता नहीं कहानी मुझे कहना चाहिए कि नहीं, कि यहाँ पे लाक्षागृह था और पांडव यहीं से भागे थे। जब मैं खुदाई करने गया तो एक वहाँ के स्थानीय एमएलए जो उस समय माननीय मंत्री थे, वो हमको ले गए थोड़ा दूर और बहुत महत्वपूर्ण ढंग से कहा हमसे कि विजय जी, यहाँ से एक सुरंग गंगा तक चला जाता है और वहीं से पांडव भागे थे, तो सुरंग जरूर ढूंढ के निकालिएगा। और मैंने कहा कि मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। हुआ क्या, खुदाई में क्या हुआ मैं ये बता रहा हूँ। खुदाई में वहाँ से 7 मीटर का डिपॉजिट मिला, कल्चरल डिपॉजिट मिला। तो लगभग 28-30 फीट तक वहाँ के आदमी के रहने के अवशेष मिलते गए, जिसका मतलब होता है एक बहुत लंबा कालखंड। आगे चलें हम लोग, क्या आगे चलें? आगे आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें। यही ये जो उत्खनन का एक दृश्य है वो मैं आपको, यही पूरा हम लोग माउंट में खोद के गए। और यहाँ पे जो मानवीय संस्कृति शुरू हुई, वो शुरू हुई आपको लगभग 4th मिलेनियम बीसी में। हमें कई डेट्स मिले, जो कि एक डेट मुझे 4200 बीसी का भी मिला, और वो डेट मैंने कराया बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी। लेकिन ज़्यादा डेट 3rd मिलेनियम बीसी के थे। तो अगर हम मान लें कि 4200 बीसी का डेट थोड़ा सा इनकॉन्ग्रुएंट था भी, तो 3री सहस्राब्दी ईसा पूर्व में तो कहीं कोई संदेह नहीं है। यहाँ से यहाँ की संस्कृति शुरू हुई। ये संस्कृति क्या थी? इसको लोग नवपाषाण युग से आइडेंटिफाई करते हैं। अब पहाड़ में तो कोई हिल नहीं है कि वहाँ पाषाण के पत्थर आप बनाइएगा। तो इस कालखंड में जब खेती शुरू ही हुई है, तो हड्डी का इस्तेमाल लोग करते थे। जहाँ पहाड़ियाँ मौजूद नहीं थी और पत्थर के औजार सुलभ नहीं थे, वहाँ हड्डी के औजार बहुत मिलते थे। आगे बढ़िए, मैं दिखाता हूँ। एक मिनट फर्स्ट रुकिएगा, पहले आगे बढ़िए। अब ये देखिए, हड्डी के बड़े ही आपको क्रूड औजार लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप ट्रेंड आंख से देखिएगा आर्कियोलॉजिस्ट के, तो इसमें आपको स्क्रैपर दिखेगा, इसमें पॉइंट दिखेगा, इसमें नीडल दिखेगा। हड्डी का औजार ऐसा नहीं है कि नवपाषाण युग में शुरू और ख़त्म हो गया। बाद तक जब यहाँ नगरीकरण हो गया है पूरे उत्तर भारत का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, उस समय तक हड्डी के औजारों का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन उस समय हड्डी के औजारों का जो परिष्कृत हुए हैं, वो भी मैं आपको स्लाइड में दिखाऊंगा कैसे वो परिष्कृत हुए हैं। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब उसी कालखंड में, मतलब लगभग 3rd मिलेनियम बीसी में, ये एंटिक्विटीज़ मिल रहा है, जिसमें आप अगेट के मनके को देख रहे हैं, और नीचे में दाहिने तरफ जो उजले रंग का माइक्रो बीड्स है, वो स्टिटाइट का बीड्स है, शेर खरी का बीड्स है। और औरतें नेकलेस की तरह इसको पहनती थी। इनफैक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक साइट में पूरा नेकलेस ही मिला है राजस्थान में। वो कॉटन के धागे में ऐसे ही माइक्रो बीड्स, छोटे छोटे बीड्स गुथे हुए थे। अब राजस्थान चूँकि एरिड एरिया है, तो वहाँ पे मॉइस्चर नहीं है, तो ख़त्म नहीं होता है। हम लोग के यहाँ तो इतना मॉइस्चर है कि वो एंटिक्विटीज़ को खा जाता है। तो हम लोग को इस तरह के छोटे छोटे, उसको उठाने में भी दिक्कत होती थी, हाथ में सट जाता था। मतलब ये आपको स्लाइड में तो एक बारगी दिख रहा है, लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में आप काम कीजिएगा, तो मिट्टी का परत पर परत खोदते जाइएगा, और थोड़ा 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 दूर पे आपको ये मिलता जाता है, और ये बहुत ही कठिन प्रोसेस होता है रिट्रीवल का। नेक्स्ट। अब नवपाषाण युग का जो फीचर्स था कि लोग खेती करना शुरू कर दिया था, और गेहूं, धान, मिलेट्स
ये सारे एविडेंस हमको मिलते हैं। यहाँ एक बॉटनिस्ट भी बैठे हुए हैं, विद्या वो बैठे हुए हैं। व्हीट माना जाता है कि नॉर्थ वेस्ट से आया है और राइस जो है वो ईस्ट से आया है। लेकिन 3rd मिलेनियम BCE में मिथिला के क्षेत्र में चावल और गेहूं दोनों मिल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि रोटेशन ऑफ क्रॉप्स लोगों को पता था कि रोटेशन ऑफ क्रॉप्स क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी को हम कैसे बढ़ाएंगे। लेकिन हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे कि समय का जो सुई है वो आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या समस्तीपुर में पाढ़ी एक ऐसा जगह है जो मिथिलांचल में इतने गहरे पुरातात्विक कल्चर का है? ऐसी बात नहीं है। KP जायसवाल इंस्टीट्यूट में जब मैं डायरेक्टर था तो मैंने पूरे बिहार में एक सर्वेक्षण कराया था और लगभग 5500 आर्कियोलॉजिकल साइट्स का हम लोगों ने पता लगाया था और डॉक्यूमेंटेशन कराया था। संयोग से दरभंगा और मधुबनी का जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहा था सुशांत यहीं बैठा हुआ है। और मिथिला क्षेत्र के कई साइट हैं, जैसे कि आपको कोपगढ़ है, हाबीडी है, कई क्षेत्र हैं जहाँ से ताम्र पाषाण युग के मृद भांड मिले, मिट्टी के बर्तन मिले। तो आप कहेंगे कि बिना खुदाई किए हुए आपने सर्वेक्षण के आधार पर कैसे कह दिया कि ये इस कालखंड का है? तो जिनका पुरातत्व से वास्ता नहीं है उनके लिए कहना चाहता हूँ कि एक बड़ा एक अजीब सा पैटर्न रहा है मिट्टी के बर्तनों के इवोल्यूशन का, ईंटों के इवोल्यूशन का, मूर्तियों का तो है ही कि एक कालखंड में एक खास तरह के मिट्टी के बर्तन बनते हैं, फिर वो फैशन में चला जाता है, फिर दूसरे तरह के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं और दूसरे एविडेंस से कोरिलेट करके पुरातत्व वेत्ताओं ने एक अच्छा इंडेक्स तैयार कर लिया है। और एक खास तरह का मृद भांड होता है जो इसको ब्लैक एंड रेड वेयर कहते हैं और उसमें एक शेप होता है डिश ऑन स्टैंड। वो देखते के साथ सुशांत समझ जाएगा कि ये चाइल्कोलिथिक पीरियड का है और उसमें बहुत डाउट नहीं है, बहुत संदेह उसमें नहीं है। हम आपको शायद वो स्लाइड भी है वो दिखाते हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। यही है, ये जो है आप देख सकते हैं कि एक तरफ इसका लाल है, दूसरी तरफ काला है, ये ब्लैक एंड रेड है। और ये डिश मतलब थाली हो गया और ये स्टैंड रखा हुआ है, स्टैंड युक्त थाली, यही है डिश ऑन स्टैंड। वास्तव में उस समय कुर्सी टेबल का प्रचलन नहीं था, तो ज़मीन पर अगर आप बैठ के खाते हैं तो अपने थाली को आप एक स्टैंड पे रख देते हैं और उस पर आप खाते हैं, इसीलिए ये शेप जो है वो पॉपुलर हो गया। और ये पॉट सेट देख के लगता है कि ये ताम्र पाषाण युग का है और दरभंगा और मधुबनी में कई ऐसे गांव हैं जहां ताम्र पाषाण युग की संस्कृति मिली है। देखिए, इतना तो हमको स्वीकार करना चाहिए कि आप उत्तर बिहार में जैसे जैसे पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एंटिक्विटी का डेप्थ घटता जाता है। जैसे कि आप घग्घर से गंडक आइए, उसमें बहुत सारे साइट्स हैं जो 3000-4000 साल वर्ष पुराने होते हैं। जब आप गंडक से बूढ़ी गंडक तक आते हैं तो एक दो साइट हैं जो नवपाषाण युग तक जाते हैं, चेचर और पार। जब आप बूढ़ी गंडक से कोसी तक आते हैं तो कई साइट हैं जो 1500-2000 साल ईसा पूर्व तक जा सकते हैं। और जब आप कोसी से महानंदा जाते हैं तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले का कोई साइट का पता नहीं चलता। सिकलीगढ़ एक ऐसा साइट है जिसकी खुदाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बैठे हुए इसलिए हमको थोड़ा एक्लोजेटिक होने चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि ये सुनने में लगता है कि नवपाषाण युग से ताम्रपाषाण युग में ट्रांजिशन हो गया, लेकिन नवपाषाण युग से बहुत ज़्यादा मटेरियल कल्चर ताम्रपाषाण युग में नहीं बदला। तांबे का इस्तेमाल शुरू हुआ, लेकिन तांबे का एक छोटा मोटा कुछ मछली मारने की अंगसी मिल जाती है, वो मटेरियल कल्चर वही रहा। मटेरियल कल्चर का परिवर्तन होता है जो आयरन की डिस्कवरी हो जाती है और आयरन का बहुतायत में इस्तेमाल शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, ये सब ताम्रपाषाण युग के हैं। और वही स्टीटाइट के जो मैं नेकलेस की बात कर रहा हूँ, आप ये देखिए, ये सब हड्डी का ये तीर है और
पॉइंट है, बोन पॉइंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब आप देखिए कि ये नवपाषाण युग के नहीं, ये जो है ये चैल्कोलिथिक पीरियड के बोन के औजार हैं और ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जिसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की संस्कृति कहा जाता है। थोड़ा सा नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में बताना चाहूँगा, जो आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है उनको भी जानना चाहिए। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कुछ नहीं है, एक बहुत ही चमकीला काले रंग का मिट्टी का बर्तन। अब आप अभी भी उसको आप देखिएगा ना, 2600 साल पुराना हो गया, वो आईने की तरह चमकता है। और इसका फैशन रहा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक, खत्म हो गया उसके बाद आपको NBPW नहीं मिलता है। तो इस कालखंड को पुरावेदों ने NBPW फेज कहा। यही कालखंड था जब नगरीकरण हुआ, एंटिक्विटीज का रिचनेस बढ़ गया, मटेरियल कल्चर जो है काफ़ी बढ़ गया आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये सब आयरन ऑब्जेक्ट जो हमें पहाड़ से मिले हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये बहुत सुंदर साबुत ग्रे वेयर का 2 स्पेसिमेंट्स मिला है, अभी बिहार म्यूजियम में इसको डिस्प्ले किया जा रहा है। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का है और बिल्कुल साबुत और चमकता हुआ ग्रे वेयर है ये। नेक्स्ट नेक्स्ट, इस कालखंड में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आकर के पहाड़ जो एक छोटे से नियोलिथिक सेटलमेंट के रूप में शुरू हुआ था, एक नगर के रूप में परिणत होने लगा है। ये एक ट्रेड रूट में आ गया है और जब ट्रेड और कॉमर्स की एक्टिविटी शुरू होगी तो जाहिर है कि कॉइन्स की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो कॉइन्स हैं, पंच मार्क कॉइन्स, ये भारतीय इतिहास के प्राचीनतम अर्लीस्ट कॉइन्स कहे जाते हैं। ये पूरे उत्तर भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मिलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट, जब हम और आगे बढ़ते हैं और 2री शताब्दी ईसा पूर्व में आते हैं पहाड़ में, तो उस समय बहुत बड़े पैमाने पर बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स मिलने लगते हैं और हमने कई जगह खुदाई कराई थी और लगभग 1 किलोमीटर के पूरे एरिया में वहाँ नगर के अवशेष। दुर्भाग्य से हमको उसको ढक देना पड़ा है। ये समय हो गया क्या? अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, स्लाइड को अंत में ले जाइए। ये रिंग वेल है जो ड्रेनेज के लिए इस्तेमाल करते थे लोग। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब बहुत सारे ब्राह्मी में लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। उस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है निगम। निगम का मतलब होता है गिल्ड। तो उस समय जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ था तो ट्रेड गिल्ड्स भी था। नेक्स्ट, अंत में अपनी बात को कंक्लूड करने के लिए ये कहना चाहता हूँ कि पहाड़ की 10 सीजन से मैंने खुदाई की और पूरा जो वहाँ का कल्चरल सीक्वेंस था वो नवपाषाण युग से लेकर के और गुप्त काल तक था। गुप्त काल के बाद वहाँ पर मानवीय संस्कृति के कोई अवशेष नहीं मिलते हैं और जो मॉडर्न पॉपुलेशन है मुसलमानों का, मुसलमान ज़मींदार वहाँ के बसे और बाद में फिर कोयरी और कुर्मी को लेबरर्स के रूप में वो लाए। तो गुप्त काल तक मुझे एक भी मूर्ति नहीं मिली, शिव की, शिवलिंग या वैष्णव मूर्ति कोई नहीं मिली। बुद्धिज्म से संबंधित कुछ भी नहीं मिला। मिला क्या? तो मिला मुझे एक पूरा ईंटे का स्ट्रक्चर जो यज्ञ वेदी की तरह लग रहा था। मुझे 2 एंटिक्विटीज़ मिले। एक एंटिक्विटी में यज्ञ वेदी का चित्र अंकन था और लिखा हुआ था शयन कुंड, और दूसरे एक मोहर मिला हड्डी का जिसमें लिखा हुआ था इंद्र चेतस्य। ये मेरे लिए कंक्लूड करता है कि जो वैदिक इथॉस है मिथिला का वो रिप्रेजेंट करता है। और हम मान के चलते हैं कि अर्ली क्रिश्चियन सेंचुरीज आते आते वैष्णविज्म और शैविज्म वगैरह पॉपुलर हो गया था। कुछ जगहों में हो गया होगा, लेकिन मेरा मानना है कि अधिकांश जगहों में यहाँ पे वैदिक ऑर्थोडॉक्सी का या वैदिक रिलीजन का डोमिनेंस था, वहाँ पे शैविज्म और वैष्णविज्म को भी आने में देर लगा। हो सकता है 6ठी 7वीं शताब्दी में आया हो, ये हो सकता है। आपको उसका हम चित्र दिखा देते हैं और बात खत्म करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, यही है। आप देख रहे हैं कि
उस तरफ जो है वो हाथी दांत की अंगूठी है और उसमें एक यज्ञ वेदी बना हुआ है और उस यज्ञ वेदी के नीचे लिखा हुआ है शयन कुंड। शयन जो है एक वैदिक वर्ड है, क्योंकि जो वेदों में दिया हुआ है वेदियों का बनाने का, वो अलग अलग चिड़ियों के नाम पर है, शयन भी उसमें एक है। और ये जो हड्डी का मोहर है, नेगेटिव में ये ब्राह्मी में अंकन है और इसमें यही लिखा हुआ है इंद्रचेटस और शंख का चित्र इसमें अंकन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलने के लिए आ रहे हैं कि सवाल के लिए? नहीं, हम यहाँ से आ रहे हैं अपना प्रेजेंटेशन। सवाल नहीं, ठीक है, लोग जहाँ बैठ गए हैं ठीक ही है, बैठने दिया जाए सर, जहाँ लोग बैठे। देखिए, ये एक अद्भुत चीज़ है कि क्योंकि मैंने बताया ना कि एक राज्यव्यापी सर्वेक्षण हम लोगों ने कराया 5500-6000 के आसपास साइट्स का। तो मगध का जो क्षेत्र है उसमें हर एक तीसरे चौथे गांव में आपको बौद्ध के रिमेन्स मिल जाते हैं, स्तूप है, मूर्तियां हैं। लेकिन मगध के ठीक पश्चिम में जो भोजपुर इलाका है उसमें नाम मात्र का नगण्य है बौद्ध धर्म के अवशेष। फिर आप उत्तर बिहार में आते हैं तो गंडक का जो बायां तट है, जो आप वैशाली का जिक्र कर रहे हैं, जो कि वैशाली से लेके आप ऊपर चले जाइए तो लौरिया, अरेराज, लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा तक चला जाता है। तो वहाँ बड़े बड़े बौद्ध स्मारक हैं। लेकिन आप गंडक के बाएं तट से थोड़ा पूरब चले जाइए तो वहाँ से लेके महानंदा तक नगण्य हैं बौद्ध धर्म के अवशेष। ऐसा नहीं है कि नहीं है, जैसे कि पश्चिम में अंधराठारी के ठीक बगल में आपको 3 बौद्ध स्तूप मैंने देखा है जाकर के। अंधराठारी खुद ही बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। फिर बेगूसराय में संघोल है, संघोल का मतलब ही वह संघ से, वहाँ भी 4 भोटिव स्तूप हमने देखा। और वहाँ के एक उत्साही सुशांत यहाँ पर बैठा हुआ है, उनके एक प्रोफेसर ने बिना ASI के परमिशन के खुदाई कर दी और वहाँ पे 4 भोटिव स्तूप जो हैं वो खोद के निकाले गए। बौद्ध मूर्तियाँ उत्कृष्ट मिली हैं मिथिला में भी, तो नगण्य है, मगध की तुलना में नगण्य है। और ये एक बहुत ही बड़ा टेस्टिमनी है हम लोग के रिलीजियस टॉलरेंस का, जो बौद्ध धर्म अशोक ने चाइना तक फैला दिया। जब फाशियान आया था, फाशियान का रिपोर्ट पढ़िएगा फाहियान का, तो हर एक 25 माइल पर बौद्ध स्मारक मिलेगा पूरे सेंट्रल एशिया में। और वो चाहता तो भोजपुर में और मिथिला में नहीं पहुंचा सकता था। मिथिला में क्या पॉलिटिकल पावर था मौर्यंस के सामने में, तो फोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है बौद्ध धर्म की प्रोपगेशन में। ये भी एक बात सुनने को मिलती है। तो इतना मेरी अपनी बुद्धि के हिसाब से हम बोल दिए। अगर आपका और कोई सवाल है तो फिर हम लोग बात करते रहेंगे, एक दूसरे के पास फोन नंबर है। एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा कि 70 के दशक में आरंभ में ही मेरे बहुत सम्मानीय गुरु, और उनके प्रति किसी प्रकार का दुर्भाव से मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनके प्रति सम्मान रखते हुए बोल रहा हूँ, उन्होंने समस्तीपुर में खड़े होके कहा कि मिथिला में यदि राजा थे तो प्रजा भी रही होगी। इस कथन में ध्वनि ये थी कि प्रजा ही नहीं थी तो राजा कहाँ से आएंगे, और प्रजा नहीं थी इसलिए नहीं थी कि यहाँ बसने योग्य जमीन ही नहीं थी, सब पानी पानी था। पाण की इस खुदाई ने उस बात को बदल के रख दिया, और अब लोग ये कहने लगे हैं, जिस शतपथ ब्राह्मण की रचना को लोग 6वीं 7वीं 8वीं शताब्दी तक ईस्वी पूर्व तक ले जाते हैं, अब कहने लग गए हैं कि नहीं, है तो उसी समय की रचना, पर ये घटना पहले की इसमें लिखी हुई है। यानी मिथिला में आबादी बसना शुरू हो गई थी 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व या थोड़ा उससे भी पहले से, 3rd मिलेनियम, ये आई एम सॉरी, 3rd मिलेनियम BC या उससे भी थोड़ा सा पहले।
और इनकी खुदाई में जो चीज़ें निकली हैं उससे स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि एक सामाजिक व्यवस्था, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वगैरह की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी उस एरिया में। तो ये बहुत बड़ी बात है। विजय बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता सुशांत कुमार, प्रारंभिक मध्यकालीन पूर्वी भारतीय मूर्तिकला शैली में कर्नाटक राजाओं का योगदान। सर हमें कर बात करबे कि तो कनी प्रॉब्लम छै ते लोग। अच्छा कोई बात नहीं। मिथिलेश कुमार झा जी, may I now invite you, making sense of politics in Indian intellectual tradition, राजनीति रत्नाकर और संदेश्वर। First of all, I would like to thank the organizer for inviting me to share some of my thoughts, which is really preliminary kind of research. The topic I'm going to discuss, which is very close to my heart, that is the politics or Rajniti. I have studied it throughout my academic career from undergraduate to PhD, and my PhD was mostly on language politics, particularly in North India, with a specific reference to Hindi. After that, I have some interest in political thought or Indian political thought. I was always curious to know, I mean, when we study politics, we start with Aristotle, Plato, and all the canonical literature. My own interest was also that was there any thinking, theorization about politics in Indian intellectual tradition. And it was a kind of chance encounter that I come across Chandeshwar Rajniti Ratnakar. And this is, 1 or 2 years ago. So whatever I am going to speak about this would be, should be considered as a kind of preliminary. I need to study, research much more to say anything with some kind of confidence or some kind of surety. So my topic is, I'll start with this, that when we talk about politics today, we have a very authoritative approach which we call political economy. So through politics and economy, we try to understand our society, our country, our world, our life, so on and so forth. And the way we see politics unfold, we are very unsatisfied, uncomfortable with the practical aspect of politics. But the way when we study politics, for us, politics is a means to lead a good dignified life. And what is that good life and how we can lead that good life? So politics tells us that we can lead a good dignified life only in a good society. So the role of politics was to manage, control, regulate the society where human beings can lead a good dignified life. So that was my kind of approach and trying to understand what was theorization of politics in Indian intellectual tradition. And modern Indian political thought, themes in Indian political thought start with 19th, 20th century. So when I encountered this Chandeshwar, and I'll come to this political economy question and the ideals of life and how politics help us achieve that ideal towards the later part of my my presentation. But I'll go back to the text and the author. I think we have wonderful presentation just before me on the antiquity, and I think Sushant will speak about Karnat dynasty. So our author Chandeshwar is from 13th or 14th century. He was the Sandhi Vigrah Mantri of last Karnat king Hari Singh Dev,
and he wrote this text after the. So Hari Singh Dev was the last sovereign ruler of Mithila. After that, in 1324, we have Mithila under the kind of control of Delhi Sultanate, and there was new dynasty which is Oinivar dynasty, and King Bhavesh was his patron, and Chandreshwar was writing this text under the patronage of King Bhavesh, or Bhava Singh is also known as. So he is from village Bisafi in Madhubani district, and his grandfather, father were all involved in the practical politics or managing the administration of Karnat dynasty or later periodical. So one analogy one can draw is that when we have modern Indian political thought in 19th, 20th century, all of them were also involved in the active politics. So is that period when Chandeshwar was trying to theorize or describe the politics. He was actively involved, Sandhi Vigrah Mantri, Mahamat. His family was deeply involved in the administration, and that was also a time when you have a kind of decline of Hindu polity and rise of the Mohammedan or the Islamic rule in the country. So during that time he was trying to conceptualize this thing. And the biggest concern for Chandeshwar was to try to balance the acrimony or the conflict that existed for many centuries before him on the question of dharma and earth. So for him, politics is a mechanism or a tool through which society can prosper, but not reducing or doing away with dharma. So this question, I'll maybe if there is interest, I'll talk about later. So now particularly this text has 16 chapters, which is called Taranga. There are lots of similarities between say what Chanakya described as the necessary element of a well-established polity or state. So like Raja, Amatya, Purohit, Durga, Kos, Sena, Bal, so on and so forth. So these are all there in this 16 Taranga of Chandreshwar also. What he does in this text, when I read, and my reading is based on basically K.P. Jaiswal, I will say that it's a kind of 1936, but his manuscripts is based on 18th or 17th century then available manuscripts. So mostly the introduction of K.P. Jaiswal in 1936, which was done under some kind of patronage from Edward Deeds and Bihar and Odisha Research Society. Then in 1970s there was Usha Karja. I don't know, sir, how much time I have. So Usha Karja did a PhD thesis from Bihar University. I have not seen that thesis myself. Then in 1971 or 74, Chaukamba publication has the Hindi translation of that text. So I have seen K.P. Jaiswal and the Hindi translation. My understanding of Sanskrit is I can read, understand, but I cannot claim any kind of authority in my reading of Sanskrit original text. So what you find in this text of Rajniti Ratnakar, its value is one in trying to, and he was a kind of Nibandha writer or Dharma Shastri. His many Ratnakars, 7 Ratnakars he wrote. I am sure some of you are familiar with. The Hindu law in Mithila is based on his other equally famous text, Vivad Ratnakar, which has about 100 taranga. So in this text, particularly Rajniti Ratnakar, when I read the Hindi translation and the introduction of K.P. Jaiswal, one of the fascinating part was
that he was part of a tradition in Mithila which was called Smritikar. So there was Shruti, like oral folk tradition and so on, but there was Smritikar, and it presents the views of many Smritikars for whom we don't have their original works, but these are cited in this text. So Rajniti Ratnakar in the 16 Taranga represents the views on politics by many Smritikars before him, starting from Manu, Yagyavalk, which is often cited, but also Kamandakya and Kamandakya and Sukra, Nithisar, Brihaspati, Naradiya Sanhita, and so on. So there are lots of articulation or representation of earlier Smritikar in this text, and that is fascinating for him. And Chandreswar Rajniti Ratnakar also influenced many writers afterward, like Vardhaman, Misru Misra, and Vachaspati Misra too. I am not very aware of, beyond their names, I don't know what kind of writings they did. As I said, it's a kind of preliminary presentation on Indian intellectual tradition or thought in Mithila. And now, just a couple of points about, in terms of my fascination with the text, I was little disappointed because there is nothing original thinking that comes in this text, at least to me, in terms of theorizing politics. Because prior to Rajniti Ratnakar, we have very well established tradition of Dharma Shastra. Arth Shastra was considered as the expanded part of Veda, and Nitisar. Surprisingly, in this text, my expectation was that there would be some independent, autonomous, or new kind of theorization on politics, which was established by Kautilya, and in modern period we all refer to him. So my expectation was that in this text I will get to know about the specific, distinct theorization on politics. But I was disappointed because it is more a kind of summarization of earlier Smritikars and trying to interpret it in the 13th, 14th century Mithila. So that was one disappointment. The surprising point was that when I just said that much of our academic discourse on politics started with Plato and Aristotle, and Aristotle wrote another text called Nicomachean Ethics. So politics has a role, but it is not only an end game. Now in Chandeswar Rajniti Ratnakar, we see some kind of similar understanding of politics, not as an end, not also which is there in Arthashastra and then existing tradition of Dandaniti. Politics is not reduced to Dandaniti or merely acquiring more and more wealth or land. But politics is about a decent society or a dignified life. That comes very clearly in Chandeswar Rajniti Ratnakar. Other fascinating part was that how come from 1st century BC to 7th or 8th century Christian era, you have a continuous Bhasya, Tika, Nitisar, so on politics. But from 7th to 11th century, there is almost kind of absence of any text on Rajniti. And Kautilya has already written the Arthashastra, giving it more autonomous from the Dharma Shastra kind of approach to politics. Now in 11th century, when there is a kind of rethinking about politics, again we see a kind of reassertion of Dharma Shastra. So he used the term Rajniti for the first time, and many other contemporaries of him like Rajniti Kalpataru, Rajniti Kamadhenu. So there was this term familiar among his many contemporary writers. But in theorization, we don't see a kind of leap jump from Arthashastra when it comes to define what does it
does it mean to describe politics. Now I come to my last part. So one in Chandraswar writing, I get some kind of another disappointment about, he is moving away from orthodoxy, but not enough to create an independent sphere of politics. For example, he undermined the influence of coronation for defining a Raja. Or, who can be king, he was not agreeing to many other smritikars. But when it comes to Sabhasad or the way administration of the state should be run, he is somehow reinforcing the Dharmasastra vision of politics. So, to conclude, much of our modern politics and its understanding is based on the relationship between the economy and the politics. Chandraswar was trying to balance, as I began my presentation with, dharma and artha, and it seems that dharma is given more preference, more weightage than the artha, and in fact somewhat reaffirmation or reassertion of Brahmanical worldview in his theorization of politics even in the 13th and 14th century. So with that I just conclude. I hope there was something, but these are just the preliminary remarks. Thank you. Thank you. Any questions? Comments? I think Chandraswar is somewhat remote for us. Chandraswar seems to be somewhat remote for us, so there are no questions. But again, I'll quote one of my former teachers at Patna University, who used to say, who never spoke politics as politics, he spoke politics as politics. So while talking of intellectual tradition, I thought that he may like to find out whether it had already started generating or it has started generating only in our times. Anyway, that is just for joke's sake. Now I invite सुशांत कुमार प्रारंभिक मध्यकालीन पूर्वी भारतीय मूर्ति कला शैली में कर्नाटक राजाओं का योगदान।